Hello, everyone, and a very good evening to all of you. I, Steffi Bhateja, your host for today's session, bring to you the 15th episode of the Chandigarh chapter of the Asian Literary Society. दोस्तों, दिल के पैगाम दिल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ दिल का होना ही काफी नहीं होता। दिल में छुपी रहती हैं सारी ख्वाहिशें, बात करनी हो तो दिल से किया करो। जिस दिल पर लिखी हो मोहब्बत की सच्चाइयां, जिस दिल पर लिखी हो मोहब्बत की सच्चाइयां, उस दिल को मिलती हैं सिर्फ दर्द और दवाइयां। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि स्टेफी आज दिल पर इतनी शेरो शायरी क्यों कर रही है। क्योंकि दोस्तों, आज के जो हमारे अतिथि महोदय हैं, उनका रिश्ता ही दिल के साथ है। यूं तो है ये दिल के डॉक्टर जनाब, यूं तो है ये दिल के डॉक्टर जनाब, पर लिखते हैं कविता भी बाकमाल। So let us extend a warm and a hearty welcome to Dr. Aditya Ratan, who is a reputed cardiologist and writer from our own city. Thank you, Steffi. Thank you for a lovely introduction. And it's always a pleasure meeting with you. And you have provided this stage. I'm honored, and I thank all the viewers also to spare the time for the evening. And let's have a very interesting discussion. Rocking. Thank you. Yes, rocking session. Okay, so how are you, sir? I hope you are in the pink of health. Yes, absolutely. I'm doing great, and I hope you are also in the best of your health, and all our readers are Yes. also very Doing well. well. Yes, sir. Yes. Hanji. So let me introduce Dr. Aditya Ratan, sir, to our viewers first. Dr. Aditya Ratan is an Indian author, Hindi poet, and practicing cardiologist based in Chandigarh with over 2 decades of clinical experience. His non-fiction book, Install Antivirus in Your Hardware, was widely appreciated for making heart health accessible and relatable to general readers. His award-winning novel, Moksha, The Divine Reversal, marks his compelling foray into mythological fiction, weaving philosophy, destiny, and human conflict into a layered narrative. The novel secured first position in its category at the Delhi Literature Festival 2026. Alongside his long form writing, Dr. Ratan writes Hindi poetry and is particularly fond of ghazal composition. His short stories, poems, and essays have appeared in Life Positive, Infinite Theism, Rivers Beat, and The Lifestyle of the Tribune, and Sir has contributed several middle articles to the Tribune newspaper. A recipient of first prize in the Hindi short story category and a two-time awardee in the English short story category by the Chandigarh Literary Society, Sir was also shortlisted amongst the top 10 writers. Wow, sir, that's great. In the prestigious Write India initiative judged by Gulzar Saab. His works have featured in anthologies such as Sashakt Divyang and 111 Stories of Love. Yes. Thank you, Steffi, for the nice introduction. You Yes, presented sir. so lovely that it seems very honorable for me to be on this platform sharing all this with you. Yes, I look forward to an interesting session with you, sir. Okay, so sir, before I start with the interview, I first want all our viewers to see a few glimpses of your medical and your literary journey so far. So far, your life and your journey as a cardiologist and also as a writer so far. तो हमने एक वीडियो बनाई है उसके लिए, so I'm going to be playing that video for the same. Sure, thank you.
Wow, sir. Wow, amazing. Amazing it Very was. impressive. Your medical and literary journey, both we had tried to encapsulate. Thank I you. hope you And like the compilation. absolutely, your compilation was so meticulous, and you have, matlab, it shows your effort you have taken to compile all these, and showing me, and even I could revisit my journey since the book launch. So I was so happy Nostalgic. to, yeah, I was so happy to watch the video, and I'm sure the readers or the viewers would also be liking that video. Yeah. Thank you so much. Yeah, I hope the viewers also like the video. Yes, sir. So, sir, now we can start with the conversation. Now we can begin with the interview. So, Yes. let me begin by asking you, sir, firstly, sir, you are a successful cardiologist with over 2 decades of practice so far. So far, right? So, when and how did you venture into the world of literature and writing? Writing में कैसे आना हुआ डॉक्टर साहब का? या स्टेफी ऐसा हुआ कि डॉक्टर का तो चलो था ही, एक ड्रीम था ही, बट माय फादर वाज एन इंग्लिश प्रोफेसर. ही वाज एमए इंग्लिश. ही वाज टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस इन गवर्नमेंट कॉलेज in Faridabad. So right from the very beginning in our childhood, he used to show us small nuances of the English words, or even the play of English words. We had so many books at home, all the plays of Shakespeare and T.S. Eliot and every other person. So we used to come across all these good books. दो हम उतना उसमें गए नहीं, बट पापा का इफेक्ट काफ़ी रहा. और फिर जो उससे मेरे को एक इंटरेस्ट जागा, जब वो न्यूज़पेपर के जो मिडल आर्टिकल्स थे उनमें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग वो लगा, तो आई यूज टू टेक दैट. और उसके अंदर जो ब्यूटीफुल प्ले ऑफ वर्ड्स था वो पापा बताते थे. लाइक मुझे याद है सबसे पहले जब उन्होंने बताया, आई वाज इन अ वेरी यंग एज, एट अ वेरी यंग एज, खुशवंत सिंह जी की वो एक स्टोरी आती थी हमारी बुक में, हमारे इंग्लिश की बुक में. तो ही पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. तो ही वाज राइटिंग अबाउट हिज ग्रैंडमदर, आई थिंक, कि her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. तो माय पापा टोल्ड मी इन सच अ ब्यूटीफुल वे ना, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, लाइक दैट. सो आई गॉट वेरी हुक्ड ऑन टू दैट प्ले ऑफ वर्ड्स एंड दिस थिंग. सो and suddenly one day in my standard ninth or something, so one of my teachers called in the class के अभी हम ना एक इमरजेंसी में एक हिंदी राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑर्डर्स आए हैं, एंड स्टोरी राइटिंग है और इम्प्रॉम्प्टू है, एक्सटेम्पोर एकदम से आपको कर. तो नोबडी विल फॉर इट, बट शी सेड कोई तो आओ, कोई तो आओ. तो आई सेड मैम मैं आता हूँ. आई एट दैट पॉइंट आई डिडंट नो कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट है. तो पूरे स्कूल से उन्होंने 10-15 बच्चे लिए, एक रूम में जाके बिठा दिया और एक टॉपिक दे दिया. तो जब मैंने वो लिखना शुरू किया, तो मतलब मेरे को लिखते ही हुए अपने आप ही कॉन्फिडेंस मतलब मेरे को लग रहा था इसमें तो फर्स्ट प्राइज मेरा ही और किसी का हो नहीं सकता है. सो दैट दैट डे आई फाउंड के मेरा राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, पैशन है. फर्स्ट टाइम व्हेन आई रोट द स्टोरी, और फिर जब वो रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो मेरे को ही फर्स्ट प्राइज मिला. तो मेरे को लगा कि मतलब वो अंदर से क्लिक करा कि कुछ तो है भाई. सो दैट डे मतलब मेरे को लगा. फिर एज जब हम मेडिकल कॉलेज गए, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, यू गो इनटू सो मेनी थिंग्स. और फिर नाउ आफ्टर आई स्टार्टेड प्रैक्टिस, वो मन में तो जुनून है, छोटी मोटी पोएम्स लिखते रहते थे, बट वो इधर उधर एक छोटे पीस पे लिखा, कहीं इधर उधर डायरी में लिखा, गुम गई. फिर आई गॉट द प्लेटफॉर्म. एक बार चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी ने आज से 10 ईयर्स पहले, 10 और 12 ईयर्स पहले ऑर्गेनाइज किया एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन. तो उन्होंने वो इनिशियल पैराग्राफ दिया, जो तो प्रॉम्प्ट दिया, तो वो भी मैंने लिखा. और फिर वो 6 महीने बाद, 4-6 महीने बाद उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ. तो सरप्राइजिंगली फिर मेरे को टॉप 5 एंट्रीज में आई सॉ माई नेम. सो अगेन आई फाउंड के अच्छा, हाँ, थैंक यू. तो फिर अगले साल फिर मैं उनका वेट करता रहा, अब कब आएगा. तब मैं आई वाज नॉट इंट्रोड्यूस टू एनीवन इन चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी. आई डिडंट नो सच ए सोसाइटी. जस्ट वो आ गया कहीं से मेरे पास. फिर उनका हिंदी का आया, तो आई चैलेंज माई सेल्फ कि मैं हिंदी में लिखूंगा. इंग्लिश में तो मेरे को प्राइज मिल गया है, मैं हिंदी में लिखूंगा. तो फिर हिंदी में जब मैंने लिखा, तो फिर मैं लिखकर भूल गया, क्योंकि रिजल्ट देर में आता था उन दिनों, बहुत देर में आता था. 4-5 मंथ्स के बाद सडनली आई फाउंड, मेरे को एक कॉल आया कि आपको फर्स्ट प्राइज मिला है हिंदी में. तो ऐसे डबल इंटरेस्ट बनता डिलाइट. चला गया.
या ऐसे इंटरेस्ट बनता चला गया, वन थिंग लेड टू अनदर। तो फिर मैंने एक ऐसे ही एक ऐड आया, तो सिम्बायोसिस सेंटर का आया कि हम आजकल ऑनलाइन करा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश पे कोर्स। तो इवन दो आई वाज वेरी बिजी इन माय प्रैक्टिस, बट आई थॉट कि ये मौका हाथ से नहीं, ऑनलाइन हो रहा है, तो आई थिंक आई कैन डू दैट। वो मैंने आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, आई टुक एन एंट्री इनटू द कोर्स। लेकिन जब मैंने लिया तो जिसे कहते हैं ना, वो धुएँ उड़ गए मतलब आई फाउंड कि वो बहुत टफ था। मुझे लगा बड़ा फन वे में हो जाएगा, बट वो बट इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उसका जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। इतना टफ था कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे करना था, तो अगर मैंने कंप्यूटर के बॉर्डर पे मेरी नज़र भी गई, तो वहाँ से एक रेड अलर्ट आ जाता था कि यू आर लुकिंग आउटसाइड द विंडो। और वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता था, तो यू कांट लुक इवन फॉर द टाइम। मैंने टाइम देखा वॉल क्लॉक पे, तो भी आ जाता था अलर्ट कि यू आर लुकिंग आउटसाइड द विंडो। तो और ऐसे 6 एग्ज़ाम्स थे, बट वो फिर क क्लियर किया, तो इंटरेस्ट बनता चला गया। So that is the story of entering into the literature field and enjoying it while I was doing that. So ऐसा रहा। credit goes to your dad for making you a literary, Yes, initiating the process at least. yes, वो जीन्स तो हाँ, कहीं न कहीं, हाँ, yes, प्ले करते ही हैं रोल। so, हाँ जी. So, sir, since we are talking about how you got into literature and writing, so your extensive literary journey, we would like to know if there was any specific book that you read or any particular author that inspired you to become a writer. कि एक होता है ना पढ़ के कि नहीं यार मैं भी हाथ आजमाऊं अब. Yes. तो ऐसे पर्टिकुलर ऑथर से मेरा, क्योंकि जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उसमें मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो एकदम से मैं किसी से एकदम से इम्प्रेस नहीं हुआ। बट मैंने बताया ना, मैं न्यूज़पेपर का मिडल ज़रूर पढ़ता था, तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि वो कितना ब्रिलियंटली लिखते हैं, कैसे छोटी सी बात में, आर्टिकल में अपनी बात को बड़ा क्रिएटिव वर्ड से कह देते हैं। एंड देन जो मैंने आपको बताया कि प्ले ऑफ वर्ड्स, जैसे आई रिमेंबर जब मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे से कुछ पूछेंगे, तो आई वाज़ थिंकिंग कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मुझे याद है अभी भी वो लाइन कि मैंने न्यूज़पेपर के मिडल में ही देखा, किसी ने लिखा हुआ था कि देन शी गॉट अप प्रेग्नेंट विद द थॉट्स ऑफ बर्डन इन हर माइंड। मैंने कहा कितना ब्यूटीफुली लिखा है एट अ वेरी यंग एज। मैंने कहा ये प्रेग्नेंट थॉट्स के साथ प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो मतलब मेरे को अब आजकल आपको बड़ा कैजुअली आप उसको पढ़ लोगे, बट एट अ एज ऑफ 10 इयर्स और सो मेरे को लगा कि वाओ व्हाट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। एंड वन डे आई फाउंड के आई बरीड माय नोज डीपर इनटू द न्यूज़पेपर। तो मुझे लगा वाओ, तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने एक बार क्लास 10 में ऐसे कोई आर्टिकल आया, तो वो 11th-12th के लिए था, तो मैं आई वॉलंटियर्ड। मैंने कहा मैम मैं लिख के लाना चाहता हूँ। मैम कहती हाँ हाँ आप लिख के लो, मैं देखती हूँ क्या लिखते हो। तो मैंने बड़ा बहुत सोच के, फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैंने तब कुछ लिखा कि मैं लिखता हूँ कुछ क्रिएटिव। अगले दिन व्हेन आई वेंट टू द क्लास, मैं गया, तो वो पढ़ के मैडम ने कहा कि नो वे यू यू हैव रिटन दिस। तो मुझे लगा कि, और मैडम ने मेरे को बहुत डांटा, कह रहे कि आपने पापा से हेल्प लिया, आपके पापा इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, वाई कुड हाउ कुड यू डू दैट। तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे को लगा ऐसा क्यों कर। मैंने कहा नहीं मैम मैंने लिखा। कहते एक तो लिखा है और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तो मतलब शी मेड मी कन्फेस कि हाँ मैडम मैंने ली है पापा से हेल्प, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ द सीन कि मेरे को बख्श दो। बट जब मैं 2-4 दिन बाद मेरे को वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो मैंने कहा यार मेरी तारीफ हुई है एक्चुअली। तो फिर मुझे लगा कि कुछ मतलब है इसमें कि, एंड देन हमारे पापा के टाइम में आपको पता है कि क्लास 6 से इंग्लिश पढ़ानी शुरू करते थे उन दिनों ना। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 6। तो वही मैं कह रहा हूँ जेनेटिक वो आता, तो ही वाज सो गुड इन इंग्लिश, तो उन्होंने क्लास 10th में एट दैट टाइम मतलब 1960s में ट्रिब्यून में उन्होंने उनका आर्टिकल छपा था एट एन एज ऑफ यू कैन से 14 और 15। सो हाँ, ही यूज्ड टू टेल प्राउडली कि मेरा 14-15 इयर्स में, तो मेरे को भी एक ड्रीम था कि किसी दिन मेरा भी इतना अच्छा आर्टिकल छपना चाहिए। तो जो ही अचीव्ड एट द एज ऑफ 15, मैंने 45 में अचीव किया वो। तो जिस दिन वो छपा तो आई शोड इट प्राउडली टू माय पापा कि मैम मेरा भी छपा है। सो मेरा कहने का मतलब कि धीरे-धीरे जर्नी होती चली गई ऐसे। और अब तो फिर प्रैक्टिस में आने के बाद मैंने राइटिंग वर्कशॉप्स भी की, मेघा बजाज के साथ की। देन शी लाइक दैट आर्टिकल, और उन्होंने कहा कि आप यू रिमाइंड मी ऑफ जे कृष्णमूर्ति, क्योंकि यू राइट मोर अबाउट फिलॉसफी। तो फिर मैंने उनको बहुत पढ़ा, जैसे आप पूछ रहे हो किस ऑथर को, जे कृष्णमूर्ति को पढ़ा फिर। एंड फिर उनके साथ मिलकर एक बुक भी लिखी 111 लव स्टोरीज, जो आपने
तो वो भी एक कलेक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली 111 ऑथर्स वर चूजन टू राइट अ लव स्टोरी। तो शी वांटेड कि आप कुछ अलग से लिखो बिकॉज यू राइट समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द वे। तो मैंने जो उसमें लव स्टोरी लिखी, तो मैंने उसमें एक क्लॉक के साथ लव लिखा, वॉल क्लॉक के साथ लव हो जाता है उसको। एंड शी लाइक इट सो मच, उसने कहा ये मैं अपनी बुक में छापूंगी। शी चोज मी वन ऑफ द राइटर्स ऑफ दैट एंथोलॉजी 111। तो ऐसे बस वो जर्नी चलती चली गई। So that's how. Interesting journey, sir. Sir, now since we are talking about your literary journey, can we talk about your maiden book? Do you have it right now with you, sir? Can you show it to your Yes, I viewers? do have. Yes, yes. So this was So my it's book. called, so Ins- for our viewers, it's called Install Antivirus in Your Hardware, not hardware, hardware. So, Hanji. yes, So, sir, yes, we would like to know more about this book. What is this book all about? Please elaborate on its content for our viewers. yes. This book is again very close to my heart. Steffi, I think कि मैंने इसको लिखने के बाद देखा कि हर डॉक्टर को, हर स्पेशलिस्ट को कुछ ना कुछ बुक, वो राइटर है या नहीं है, उसको अपने पेशेंट्स के लिए बुक लिखनी चाहिए। चाहे वो बुकलेट लिखे, चाहे वो 4 पेज की आर्टिकल लिखे, कुछ भी लिखे, वो शॉर्ट आर्टिकल भी लिखे। क्योंकि मैंने देखा कि चैम्बर में आने के बाद पेशेंट्स फॉरगेट अबाउट देयर, या तो वो 1-2 कंप्लेंट्स कह पाएँगे, देन आफ्टर गोइंग आउट दे विल रिकॉल कि ओह! मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ओह! मुझसे डाइट तो पूछना रह गया, ओह! मैंने ये नहीं पूछा। So I found there is some lag, some kind of communication gap is there. तो मैंने आई स्टार्टेड पिकिंग देयर वेरी कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम माय डिकेड लॉन्ग प्रैक्टिस। मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग क्या पूछ रहे हैं, सर मेरा बीपी कितना होना चाहिए, शुगर क्या होती है, सर हार्ट का पेन मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट का पेन है, हाउ विल आई कम टू नो कि मेरे को एंजियोग्राफी करानी है। अच्छा कुछ आपको पता है कमर्शलाइजेशन का ज़माना है, कोई कहता है जी मुझे तो इतने सारे टेस्ट लिख दिए, व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड, हाउ डू आई रीड माई टेस्ट, मेरे को अपना लिपिड प्रोफाइल कैसे पढ़ना चाहिए, मेरा बॉडी वेट कितना होना चाहिए, बीएमआई क्या होता है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। सो एक सेमिनार हुआ था यहाँ पर चंडीगढ़ में ही हुआ, एक फेसबुक पे एक ऐड आया, वो फ्री सेमिनार था, आई जस्ट वेंट देयर। सो वहाँ पर वो एक पब्लिशर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बुक आपको लिखनी चाहिए, आई विल मेक यू एन ऑथर इन 21 डेज। तो वो ना, वो मेरे को बड़ा वो लगा, मैंने कहा अच्छा ऑथर बन जाएंगे। तो मैंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई थी कलेक्शन, तो आई अप्रोच्ड हिम कि मैंने कहा मेरी ये शॉर्ट स्टोरीज की बुक लिखनी है। वो कहते हैं इसको आप बाद में लिखना, पहले आप अपने प्रोफेशन की लिखो, बिकॉज दिस इज योर विजिटिंग कार्ड, दिस इज योर मतलब आइडेंटिटी कार्ड। तो वो 21 डेज का ही उन्होंने प्रॉमिस किया, और क्योंकि बुक का वो एक रूपरेखा तैयार थी, तो उसको थोड़ा एडिट वगैरह करके वी पब्लिश दैट बुक, और इसमें मैंने यही लिखे हैं। एंड अनदर थिंग इज कि मैंने इसमें लिखा है 1-to-1 क्वेश्चंस। सो मैंने इसमें 121 क्वेश्चंस भी डाले हैं एंड 1-to-1 क्वेश्चन, सो दैट व्हाट अ पेशेंट वांट्स टू आस्क डायरेक्टली फ्रॉम योर डॉक्टर। और इसका टाइटल इंस्टॉल एंटीवायरस क्यों लिखा है, क्योंकि जो पेशेंट मुझसे पूछ के नहीं जाएगा, वो सर्च करेगा गूगल से, वो करेगा इंटरनेट से, वो विकिपीडिया से सर्च करेगा। एंड व्हेन यू सर्च विद हाफ नॉलेज, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आएगी। दैट मीन्स They are not वायरस reliable sources for cannot medical reliable sources. knowledge. हाँ. So it is bound to infect you. मतलब वायरस उसमें आएगा, मेरा कहने का मतलब है उस इंफॉर्मेशन में वायरस आएगा। So I wrote install antivirus by asking directly from the doctor, by reading directly from what doctor has to say, what you want to ask. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी इसको लिखे हुए भी 10 साल होने वाले, मुझे लगता है आज भी जो भी क्वेश्चन कोई पूछता है वो इसी बुक में से ही होता है। तो कई बार मैं कहता हूँ आपकी बुक में पढ़ लो, आपके सारे आंसर्स हैं इसमें। सो दैट इज हाउ दिस केम इनटू बीइंग, और वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और इसमें सभी मैंने आपको बताया जिस तरह की इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है। Yes. Aptly justified title, sir. Install antivirus in your hardware. I loved the title, and it's aptly justified the way you said. Okay. So, sir, now let's talk about your second book. It's called Moksha, the Divine Reversal. Can you show that as well? Yes. Yes, yes, yes. So, This is my book. Hanji. So, Moksha. so what is this book all about, and what inspired you to write this book at first place? ये बुक आई थिंक आप इसको कह सकते हो कि लॉकडाउन का साइड इफेक्ट है। तो क्या हुआ कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत रिलीजियस टेक्स्ट बुक या स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक को जस्ट गो थ्रू कर रहा था ऊपर से, एंड सडनली दैट लॉकडाउन हैपेंड।
मैंने 1 महीना पहले ही थोड़ा बहुत देखना शुरू किया था। सो आई फाउंड एम्पल टाइम टू वो पिक अप माय इंटरेस्ट जहाँ पे वो, क्योंकि नाउ आई हैड इनफ टाइम, क्योंकि क्लिनिक्स भी शट डाउन हो गए थे पहले लॉकडाउन में। तो जब मैं उसका रिसर्च मतलब पढ़ने लगा और डीप जाता जाता गया, तो आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मैंने कहा कि डॉक्टर जीने की तो बातें करते रहते हैं, मरने के बाद क्या होता है, ये आत्मा क्या होती है, क्या होता है ये सोल, हाउ डज इट ट्रेवल, तो कहाँ कहाँ जाती है, क्या जर्नी है इसकी। तो जो स्पिरिचुअल में टेक्स्ट में रिसर्च बेसिस पे लिखा हुआ था, वो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था मेरे को, मतलब आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट। और मेरे को लगा ये तो लोगों को पता होनी चाहिए, ये तो सबको, एवरीबॉडी शुड नो दैट। बट मैं ऐसे लिखूंगा तो इट विल लुक लाइक अ सरमन, के मैं बोले जा रहा हूँ, कोई पढ़ रहा है, ऐसे लगेगा जैसे हैवी बड़ा टेक्स्ट मटेरियल दे दिया स्पिरिचुअल। सो मेरे माइंड में अपने आप ही यू कैन से डिवाइन पावर, मैं तो कहूँगा मेरे माइंड में तो क्या बनना था, तो एक स्टोरी बनती चली गई अपने आप ही, एज इफ समबडी स्पीकिंग टू मी के इसको इस स्टोरी में करो। तो एक फिक्शन स्टोरी बनी। एक इंद्रलोक में इंद्र राजा है, उसका बेटा किडनैप हो जाता है, और किडनैप भी कहाँ होता करता है उसको, उसका राइवल करता है जो असुर लोक का राजा है, महाराज बलि कहते हैं उसको। तो वो उसको मार के धरती पे भेज देता है, अर्थ पे भेज देता है। सो इंद्र स्टार्ट चेजिंग हिज सन। वो अब डिफरेंट फॉर्म में है क्योंकि अर्थ में आ गया है। और फिर कैसे वो उसको डिफरेंट लोकाज में ट्रेवल करता है कि मतलब डेथ के बाद कहाँ कहाँ आत्मा जन्म लेती है और ये सब। सो वो एक स्टोरी फास्ट प्लेस थ्रिलर है एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एट द एज ऑफ 14-15 जो चिल्ड्रन है, दे आर लाइकिंग दिस बुक, दे आर गिविंग मी फीडबैक्स, एंड 60-70-80 ईयर्स के सीनियर सिटीजन्स भी मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। तो सुन के अच्छा लगता है कि चलो आई कुड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू टेल दिस स्टोरी। दिस वाज, आई वाज जस्ट अ मीडियम के कितनी इंटरेस्टिंग मैंने जो चीज मैंने डिस्कवर की वो मैं शेयर कर सका। दैट्स हाउ इट केम इनटू बी। Okay. And sir, taking the session ahead, do you personally believe in all these things such as supernaturalism, destiny, karma, since that is all what your second book is about, right? So, karma, destiny, do you personally believe in all these things? We would like to know. ओ यस डेफिनेटली। मैंने बताया कि मैं रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहा था, तो अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ता हूँ। तो आई थिंक एनीवन जो थोड़ा स्पिरिचुअल या रिलीजियस में करता है, और या जो भगवत गीता में, एटलीस्ट हम भगवत गीता तो हम सभी कहते ही हैं कि भाई चलो भगवत गीता, भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो अगर आप भगवत गीता में बिलीव करते हैं तो देर इज नो रीजन कि आप कर्मा थ्योरी, रीबर्थ थ्योरी, क्योंकि भगवान स्वयं जो है उसमें कहते हैं कि रीबर्थ होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग श्लोक बताता हूँ। चैप्टर आई थिंक 15 में आता है शायद, वो चैप्टर 15 में। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, और मैं उसको आपको गा के सुनाता हूँ, बिकॉज आई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। त्रैवेद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। आई टेल यू द मीनिंग के भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म करता हुआ, अच्छे पवित्र कर्म करता हुआ, अच्छी तरह से ये जिस तरह की जिंदगी पूरा उन्होंने बताई है, जैसे भी 15 चैप्टर तक ऐसे करता हुआ, जो वो अल्टीमेटली मुझे ही मुझे ही पूजता है, मुझे ही वर्शिप करता है, और आफ्टर डेथ ही रीचेज द डिवाइन लोक। तो वो हम, ये हमारी कर्म योनि है, ये जो हमारा जीवन है ये कर्म योनि है, और वो भोग योनि है। देवता लोग भी जो है वो हमारा, जो हमने अच्छे कर्म किए वो हम, समझ लो आप देवलोक में हमारा, वी आर फ्रक्टिफाइंग द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, जो यहाँ पर हमने एक्शन किए। एंड ही सेज कि जब हमारा वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, माइंड मतलब कि जब आपने जो अच्छे कर्म किए वो कर्मों का बैलेंस आपने भोग लिए देवलोक में, आफ्टर योर डेथ, देन यू कम बैक टू अर्थ अगेन। तो वो बोलते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, यानी भुक्त्वा मतलब भोग कर उन सब कर्मों को, स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, मतलब जब ये पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, मर्त्य लोक मतलब मृत्यु लोक,
अर्थ में आप दोबारा आते हैं। सो मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा मेरे को कि अच्छा हम दोबारा आते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई आई रोट दिस बुक के रीबर्थ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम इग्नोरेंस में क्यों जी रहे हैं, हाउ वी कैन मॉडिफाई अवर इवन, इस जन्म को तो कर ही सकते हैं, नेक्स्ट जन्म को भी कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे बुक लिखी है। Sir, now I want you to take us backstage. I want you to take us through your workflow process, your writing process, and the craft of your writing process, right from the brainstorming, आपके दिमाग में आइडिया आने से लेके पब्लिशिंग हाउस को फाइनल ड्राफ्ट जब आपने भेजा. Take us through your workflow of writing. ओके, श्योर। सो आप मेरे को बड़ा अच्छा मौका दे रहे हो कि आई कैन रिविजिट माय जर्नी, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आई कैन शेयर इट विद यू एंड योर ऑडियंस। तो मैंने बताया आइडिया तो मेरे को ऐसे इसका आया ड्यूरिंग लॉकडाउन, और फिर जब मैं इस पे रिसर्च करता रहा तो मुझे लगा नहीं और भी कुछ होता होगा, और भी कुछ होता होगा, इसको स्टोरी में बनाते हैं। तो जब मैं इसको थोड़ा सा आइडिया को एक्शन में डाला, उसमें रिसर्च करना शुरू किया, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता था, इवन वाइल ट्रैवलिंग, इवन जब पेशेंट्स नहीं है, जब हम थोड़ा बहुत दोबारा लॉकडाउन से आने लग गए तो भी टाइम मिल, तो मैं गूगल पे जा रहा हूँ, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे जा रहा हूँ, और कहाँ से, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टोरी की फॉर्म में आने लगा। तो जब मैंने स्टोरी किसी को सुनाई तो एक मेरे पास वो जेनजी वाले मेरा कोई रिलेटिव थे, मैंने उनको बताया दैट गाय ऑफ 25 to 30 years। तो ही सेड कि आप इसको ना, मेरे ख्याल से तो आप इसको नॉवल कब लिखोगे, मतलब ये स्टोरी बनाई थी एक 2 पेज की, जस्ट टू आई नॉट नरेटेड। उसने कहा आप इसका ना मूवी बनाओ इसकी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब तो मैंने कहा मूवी की कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग दैट पार्ट। और वैसे भी मेरे को थोड़ा मतलब क्रिएटिविटी की तरफ जाता है माइंड, बेंट ऑफ माइंड। तो मैं उसका उसका ना देखने लगा स्क्रिप्ट कैसे होती है। फिर मैंने बॉलीवुड का एक स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट होता है, ये अंजुम राजेवाली सर हैं, वो कराते हैं, उनका कोर्स ज्वाइन किया। आई लर्न द होल प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्ट मेकिंग। तो मैंने इसकी एक स्क्रिप्ट करी, और फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को भी भेजी। सो सो मेरे को प्रोड्यूसर्स के रिस्पांस भी आए, तो आई फेल्ट वेरी, अरे वाह, ये तो बस अब मूवी बन गई। तो बट देन आई फाउंड के देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, वो पूरा एंड तक स्टेज तक जाके फिर कहीं ना कहीं वो होता है। एनीवे फिर मैंने कहा कि लेट्स डू इट ऑन माय ओन, मेरे को अब और किसी पे डिपेंड नहीं करना है। तो मैंने कहा इसका मैं एक नॉवल बनाऊंगा। अब नॉवल बनाना मेरे लिए ड्यूरिंग माय हेक्टिक प्रैक्टिस बड़ा मुश्किल था। तब तक लॉकडाउन भी खत्म हो चुका था, फुल प्रैक्टिस फुल ब्लोन थी। तो फिर भी मुझे जब टाइम मिलता तो मैं थॉट्स लिखता रहता था उसमें, डॉक्यूमेंट डॉक पेज पे, गूगल डॉक्स पे। तो करते करते आई डिवाइडेड द स्टोरी इनटू 25 पार्ट्स बाय हेडिंग, के फर्स्ट पार्ट में जैसे मूवी में बनाया कि फर्स्ट एक्शन में ये होगा, फर्स्ट सीन में ये, ऐसे ऐसे करके। देन आई थॉट कि आई एम गुड इन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो मेरे को थोड़ा बहुत अवार्ड्स भी मिले हुए हैं जैसे। तो मैंने कहा मैं शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में लिखता हूँ, हर चैप्टर के एंड में एक ट्विस्ट पे छोड़ूंगा, जैसे आजकल सीजन बनते हैं। तो फिर मैंने उनको शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में लिखना शुरू किया, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज टास्क। जैसे वो टेस्ट मैच खेलते हैं ना, तो 500 रन बनाने मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे सेशंस में बनाते हैं 20-20 रन, तो वैसे करके आई स्टार्टेड राइटिंग। बस फिर वो गॉड विलिंग धीरे 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 वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक वन थिंग लेड टू अनदर, पब्लिशर मिल गया, तो दैट बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे हुआ। Okay. And sir, now we would also like to know, what does your typical writing routine look like? And I'm asking this because you are a full-fledged medical professional. So when and how do you take out the time to pen down your thoughts on a piece of paper? Writing के लिए कैसे time निकालते हैं हमारे डॉक्टर साहब? यू राइट शैफी जी, अभी भी मुझसे पेशेंट्स भी पूछते हैं जो काफ़ी देर से मेरे को जानते हैं, दिखा रहे हैं कि आपने, और बुक भी पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का शौक है, जो बुक पढ़ते हैं और वापस फीडबैक देते हैं कि आपको मिल कैसे गया, हम तो कब से सोच रहे हैं नॉवल लिखने का या बुक लिखने का। मुझे भी नहीं मालूम, आई थिंक वो डिवाइन कोई आता है टाइम, और ये तो थोड़ी सी स्टोरी भी माइथोलॉजिकल फिक्शन है। तो जैसे वो हमारे प्रेसिडेंट जी कहते थे ना, अब्दुल कलाम जी, के ड्रीम इज नॉट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, a dream is not which you see while sleeping, but it is something that doesn't let you sleep। सो वो ड्रीम जो मेरे को बस दिन रात जगाए रखा, कई बार रातों को नींद नहीं आती थी, फिर मैं सोचता था चलो एक चैप्टर ही लिख लेता हूँ। तो वो आइडिया कॉन्टिन्यूसली चलता रहता था एट द बैक ऑफ माइंड। और कई बार जैसे ही 4-5 पेशेंट के बाद 10 मिनट का गैप मिला, तो एकदम से आइडिया स्ट्राइक कर जाता था। फिर वहाँ पे छोटा सा नोट्स डाल देता था कि इसको रात को लिखूंगा, कल लिखूंगा। और ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी
और मेरे कई फ्रेंड्स भी बन गए ऐसे ही एयर ट्रैवल में। मैं लिखता रहता था एयर ट्रैवल में। तो एक लेडी थी, वो बाई चांस चंडीगढ़ की ही निकली। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ये क्या लिखे जा रहे हो, तब से मैं देख रही हूँ कि ऐसे कौन लिखता है, आप इतनी तेज। तो शी गॉट इम्प्रेस कि अच्छा आप स्टोरी लिख रहे हो, नॉवल लिख रहे हो मतलब एरोप्लेन में, फ्लाइट में। तो मैंने कहा मेरे को यही टाइम मिलता है, मैं क्या करूँ, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज एवरी टाइम। तो ऐसे वो बस जो पैशन होता है ना, वो फिर आपसे अपने आप करवा ही लेता है। आई थिंक आप तो इतने अच्छे पोएट खुद हैं, यू नो कि कैसे एक आइडिया पूरी पोएम ट्रांसलेट कर देता है ना। थैंक्स और सर। बाद में व्हेन यू रिविजिट, कई बार आपको ही नहीं विश्वास होता ये मैंने लिखा है ना। सो वो कोई आइडिया आता है, कोई डिवाइन पावर आती है विच मेक्स यू अ मीडियम टू टेल अ स्टोरी विच द वर्ल्ड वांट्स टू हियर। Yes, sir. Sir, we would also like to know if writing has changed how you see the world, how you view the world. And I'm asking this because being a lay person, हम मानते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई होता है तो वो डॉक्टर होता है, right? So has it inclined you towards spiritualism? Writing, has it inclined you towards spiritualism? And have your personal experiences in medical field and even otherwise in general shaped your writing? यस फॉर श्योर स्टेफी। ये तो माइथोलॉजिकल फिक्शन है। मैंने बताया कि जब रिसर्च के दौरान आपको कितना इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, टेक्स्ट, मतलब ऐसा लग रहा था कि सेकंड बुक भी साथ ही लिख दूं। मतलब एक स्टोरी में से अलग अलग स्टोरीज निकलती है। व्हेन यू रीड थ्रू जो भागवतम है ना, उसमें इतनी स्टोरीज है, इतनी स्टोरीज है उसमें। तो वो कुछ ना कुछ मैंने इसका रेफरेंस भी लिया है इस नॉवल में, एक दो स्टोरीज का। सो उससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं, आई थिंक इट पॉलिशेज यू, इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन। आई फाइंड के आपके अंदर थोड़ा कंपैशन आता है, थोड़ा आपको प्योरिटी ऑफ थॉट्स की तरफ यू स्टार्ट वर्किंग के। और फिर मैंने तो ये कर्मा थ्योरी पे लिखी है, तो डू गुड टू ऑल। और आपका ओपिनियन यही आने लगता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि एवरीवन शुड बी हैप्पी, एवरीवन शुड बी डिजीज फ्री। तो वो आई कुड फील के हाँ दैट समथिंग इज गेटिंग पॉलिश्ड। और क्योंकि आई एम अ बिजी डॉक्टर ऑल्सो, तो मैंने ये भी सीखा, जैसे कहते हैं ना भाई, डॉक्टर बिजनेस नहीं करना चाहिए, डॉक्टर तो चैरिटी है, डॉक्टर तो कंपैशन, डॉक्टर तो आई से कि मैंने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कोट देखा कि प्रैक्टिस लाइक ए, इवन मेडिकल प्रैक्टिस लाइक अ बिजनेस। तो मैंने एक बड़ा, ये तो बड़ा अजीब सा कोट है कि प्रैक्टिस मेडिकल फील्ड लाइक अ बिजनेस। बट उसके जो सेकंड लाइन है, सी इट इज वेरी वेरी पावरफुल, कि कीप एज इन द स्पेलिंग, यू कम्स बिफोर आई। इन द स्पेलिंग ऑफ बिजनेस, बी you comes before I. So practice your medical field like a business, keep always you before I. So it was so profound. And second point, I seems to be silent in business when you say business. So keep always I silent in your practice. मैंने कुछ नहीं किया, आई एम जस्ट a medium. कि अगर लोग कह रहे हैं अरे डॉक्टर साहब आपने ठीक कर दिया, आप तो भगवान हो, आप, हाउ कैन आई ट्रीट ना, मैं किसी को भी नहीं बचा सकता, अपने फादर को नहीं मैं बचा, मतलब यू कांट मेक एनीवन कि आप तो बस अमर रहेंगे, है ना। तो अगर मैं किसी को ठीक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जो खराब हो गया ट्रीटमेंट से बाई चांस, उसको मैं कहूँ कि मैंने खराब कर दिया, मैंने ठीक कर दिया। व्हाट आई मीन टू से इज कि मैंने कहीं पर सुना था कि हाउ अ डॉक्टर कम्स टू नो कि ही इज राइजिंग इन हिज फील्ड, when people start taking him as a god, that means he is rising in practice. And how will I come to know I am falling in my field? When I start believing them. You mean if you take it to your head कि मैं तो भगवान बन गया, then Yes, the person will exactly, go exactly. down. Yes, हाँ. exactly. Let people think you are God to us, but I am nothing. I do whatever I have learned to the best of my knowledge and mind. I write down it on it. I write the prescription on a piece of paper, and I can't guarantee he will definitely get better. I can't guarantee he will definitely get some side effect. I don't know. I do whatever is in the guidelines, whatever I have learned. So I'm nothing. I'm just a medium. So if I start taking it in my head, so that means that is a मतलब fall of your career. So ये मैंने, आपने जो बोला कि मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट और ये सब पढ़ा, तो आई फाउंड दैट कि कितनी प्रोफाउंड टीचिंग्स है, सटल हिंट्स है, ऐसा नहीं लिखा जैसा मैं बता रहा हूँ, बट सटल हिंट से आप यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन टेक इट इन द वे यू वांट टू टेक इट। तो ऐसे।
Okay. So, sir, now we've talked extensively about the serious stuff. We've talked about your medical journey, literary journey. अब थोड़ा सेशन को फन बनाते हैं. मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी. What are Okay. your hobbies other than writing? We are not accepting writing because वो आपका passion, profession अब सब है. But other than writing, how does Dr. Aditya Ratan rejuvenate himself? We would like to know. तो मैं यंग स्टूडेंट्स को तो वैसे कहता हूँ, यंग कई बार जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ एक तो मेरा ये भी हॉबी ही है जो डॉक्टर प्रैक्टिसिंग, ये मैं प्रोफेशन की तरह लेता नहीं इसको, ये भी मेरा हॉबी है। क्योंकि वो Hobby. कहते हैं वर्क हार्ड So इन योर, मैंने modest. कहा व्हाई शुड आई वर्क हार्ड इन प्रैक्टिस ना, इट शुड बी अ प्ले, इट शुड बी, व्हाई शुड आई फील कि अरे यार मंडे सुबह आज फिर क्लिनिक जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इट्स अ प्ले ऑलवेज। सो सिंस माय वर्क इज आल्सो माय प्ले, तो मेरा जो बाकी प्ले टाइम है, जो सपोजिटली एक्स्ट्रा टाइम है, वो भी प्ले एंड फन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। सो आई टेक एवरी एक्टिविटी दैट कम्स अक्रॉस माय वे। मैंने एक और चीज देखी स्पिरिचुअलिज्म में जाके कि डिविनिटी इज एवरीवेयर, divinity is ever flowing, the river of divinity is divine power is flowing everywhere, it is up to us how well we grasp it. So our instrument to grasp should be clean, इट इज अप टू अस कि हम अपने माइंड को कैसे क्लीन, हम उसको कैसे ग्रास्प करें। सो आई एम टेकिंग एवरी हॉबी। मेरे को, मैं कभी गिटार क्लासेस में चला जाता हूँ, अभी मेरे को गजल राइटिंग का एक वो आया, मैंने जो अभी आपने पढ़ा भी उसमें कि एक टीचर मिले, पेशेंट थे, ही सेड कि मैं गजलें सिखाता हूँ। मैंने कहा अरे वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं आप कैसे सीखोगे, आपके पास तो टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम सब निकल जाएगा। तो नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग अंडर हिम के गजल्स कैसे लिखते हैं। आई नेवर थॉट कि ये भी एक आर्ट सीखी भी जा सकती है। सो बट वो जो लय है, वो जो पैरामीटर्स हैं, वो सब सीखना। तो मैं गिटार करता हूँ, म्यूजिक करता हूँ। फिर मेरे को लगा, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला था बट एक पैशन था बचपन का, तो मैंने कहा कि अच्छा, वो क्रिकेट का मौका आया कि डॉक्टर्स की टीम बन रही है, तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिस दिन रात करी प्ले के तौर पे। इट इज़ नेवर अ बर्डन, कहीं पे भी टाइम मिले मैंने कैसे ग्रिप करना है, कैसे वो करना है, सब सीख के फिर मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन बना, और 16 टीम्स में से हमारी टीम को फर्स्ट प्राइज मिला। आई मीन टू से कि इट इज अप टू अस कि हम उस डिविनिटी की पावर को, पावर इज ऑलवेज देयर, इट इज फॉर अस टू ग्रास्प। तो हम अपना इनर इंस्ट्रूमेंट को कितना क्लीन रखते हैं ना, वो उतना ही शाइन करेगी डिविनिटी आप में से, जितना आप क्लीन करोगे अपने आप को। और क्लीन से मेरा मतलब है कि यू वर्क इन दैट फील्ड प्लेफुली, नॉट एज ए बर्डन। वो अपने आप इंस्ट्रूमेंट क्लीन होता रहेगा। योर बॉडी, इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो आप उस पर जितना वर्क प्लेफुली करोगे, आपको उस फील्ड में वो मिलती जाएगी। ये मेरे अपने टेक अवेज है, आई डोंट नो कि कितने लोग सहमत हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सब इंसान कर सकता है। तो बस वो उसमें इंटरेस्ट जगाने वाली बात है, ऐसा मेरा मानना है। यस सर। सर, एक फरमाइश आई है मेरे फादर की। ही सेइंग प्लीज रिसाइट वन ऑफ योर गजल्स फॉर अस। कैन यू, आर यू कंफर्टेबल, और इफ यू आर हाँ, कंफर्टेबल ओनली देन। गजल मैंने, मेरे को फिर थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि गजल मैंने नहीं रखी है। पोएम एक रखी हुई है मैंने निकाल के, इफ दैट इज रेडिली अवेलेबल। तो अगर गजल भी है तो मैं देखता हूँ फिर। You'll have to look for it in your phone. हाँ, थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी, you take your time, sir. Just a few minutes you ओके। can take, हाँ, तो because this request has come impromptu, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो खैर मैं इतना बड़ा वो नहीं हुआ, बट फिर भी Modesty, sir. मैं देखता हूँ अभी, एक सेकंड बस मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। आप तब तक कुछ और मेरे से पूछ सकते हो, सो दैट वी डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ लिसनर्स। Hanji, oh yeah, that's a good idea, sir. Okay. So, sir, it was my last question. Last but definitely not the least, we would like to know about your upcoming projects. Are you working on any book currently? Can you tell us a little bit about it? Announce it on our platform if you can. या Okay. अभी जो मेरे को रीडर से, रिव्यूअर से डिमांड आ रही है, वो दे वांट मोक्षा पार्ट 2 सीक्वल चाहते हैं इसका। आई थिंक कि मैं उस पर करूँगा Okay, काम। sequel. यस, तो वो मेरे को एक मेरे माइंड में है। सेकंड, मेरे को काफ़ी डिमांड आ रही है सीनियर सिटीजन से कि हमें हिंदी में चाहिए, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दैट मोक्षा बुक।
और थर्ड है कि नाउ ये मोक्शन नोशन प्रेस से हमारे प्रिंट हुई थी, और अभी पेंगुइन बुक्स ने इसको लिया है, अडॉप्ट किया है। सो पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको लिया है, तो अभी मेरा उनके साथ थोड़ा एडिटिंग, क्योंकि अब दोबारा तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि सून इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम द पेंगुइन प्लेटफॉर्म्स। तो पेंगुइन इसकी रैंडम हाउस इसको पब्लिश कर रहा है, दे हैव अडॉप्टेड द स्टोरी। तो वो भी एक, मैं 3 काम अभी ये कर रहा हूँ एक्टिवली। जी Okay, actively you're doing. Yes, sir. जी So, sir, जी जी। all the best, sir, from our side, from the entire ALS team for your upcoming ventures. We थैंक यू hope your book, your forthcoming books are a great success. जी। Okay. So, sir, now before I conclude the session, I have a humble request, please. Were you able to find that ghazal, sir? नहीं स्टेफी, अभी मेरे को एकदम से नहीं मिली है, It's okay, थोड़ा sir. टाइम It's लगेगा। okay. It's okay, sir. It's okay. No problem, sir. But it's okay. That request came impromptu, so it's okay. But हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे. You are requested to recite a few of your literary compositions. गजल नहीं हो पाई चलो. But if you have something written with you, sir, right now, you have. Uh, हाँ, मेरे को जो हिंदी में मैंने बताया था कि चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी प्लेटफॉर्म में हिंदी में लिखा ना, इंग्लिश वाली में मेरे को फर्स्ट टाइम, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया तो इट वाज वन ऑफ द टॉप 5 एंट्रीज, और बाद में मेरे को वो सेकंड भी प्राइज मिला। जो हिंदी वाली को वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट प्राइज मिला, तो वो मेरे बड़े क्लोज टू माय हार्ट थी। तो वो मैं close to आपको your heart. आई हैव गॉट दैट। तो वो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें मतलब उसको आई विल बी क्विक, हो जाएगा। स्टार्ट करें। Okay, Hindi first. You're reciting short story or the poem हिंदी first? शॉर्ट स्टोरी, हिंदी शॉर्ट स्टोरी। हाँ पहले हाँ short story हाँ ठीक है I was thinking हाँ ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल है बवंडर। कई बार वसुधा को लगा जैसे समय रुक सा गया हो। सदियां बीत गई थी नरेन से मिले, ऐसा प्रतीत होने लगा था। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाता। यही नहीं, फोन पर भी नरेन खोया खोया सा लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दबाव में आकर कोमल से शादी कर ली हो। ये वसुधा सोच रही है, वसुधा का थॉट प्रोसेस है। ओके, ये सोचते ही वसुधा का शरीर सिहर उठा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नरेन ऐसा नहीं कर सकता। पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब वो काम में इतना डूबा हो कि उसे दिन रात की खबर ना रही हो। वसुधा अपने सभी मरीजों का व्यक्तिगत तौर पर दर्द समझती थी, एक मनोचिकित्सक का फर्ज बखूबी निभाती थी। शायद इसी वजह से डॉक्टर गुप्ता ने इस मेंटल हॉस्पिटल में उसे एक प्राइवेट चैम्बर दिया था। आई होप वो स्टोरी का फ्लो क्लियर जा रहा है। तो here Vasudha is working as a doctor in Dr. Gupta's mental hospital. So she is thinking mental about hospital Naren. yes I She is thinking about Naren. तो डॉक्टर गुप्ता वसुधा की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ थे, और उसकी तन्मयता देखते हुए इसी प्राइवेट कमरे को 2 हिस्सों में विभाजित करने को राजी हो गए थे। एक हिस्से में वसुधा की अलमारी, बिस्तर, जरूरी सामान, और दूसरे हिस्से में कंसल्टेशन के लिए मेज, कुर्सी, कुछ पेपर, कुछ कागजात और टेबल क्लॉक। अटैच बाथरूम भी था। इन सभी सुविधाओं से वसुधा का कमरा हॉस्पिटल में लैस था। 3 साल हो चले थे वसुधा को हॉस्पिटल ज्वाइन किए, और उसने इसे पूरी तरह से अपना घर मान लिया था, क्योंकि सुषमा जैसी एक स्नेहपूर्ण सहायक थी जो 3 टाइम का खाना पकाकर और साफ सफाई भी कर जाती थी। वसुधा तो चाहती थी कि सभी मरीजों को वही कंसल्ट करे, पर डॉक्टर गुप्ता ने सिर्फ कुछ चुनिंदा मरीजों के लिए ही वसुधा को नियुक्त किया था, और इसी ख्याल से लगभग 1.5 साल पहले डॉक्टर गुप्ता ने वसुधा की मुलाकात नरेन से कराई थी। इनसे मिलो वसुधा, नरेन से मिलो। नरेन को मैं बहुत वक्त से जानता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हारे साथ प्राइवेट सेशंस का बहुत लाभ होगा। कुछ इस तरह से डॉक्टर गुप्ता ने नरेन से परिचय करवाया था। बस फिर तो रोजाना सेशन में वसुधा धीरे धीरे नरेन के बारे में जिज्ञासु होती चली गई। इससे पहले वसुधा कभी भी इतनी बहुमुखी नहीं थी, आउटगोइंग नहीं थी, आउटस्पोकन नहीं थी। नरेन के इलाज के दौरान ही उसका व्यक्तित्व निखरता चला गया। आपका ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आपने सब दर्द जिंदगी में महसूस किए हुए हैं। नरेन जब ऐसा कहता था
तो वसुधा बस खामोश मंद मंद मुस्कुराते हुए नरेन के आकर्षक व्यक्तित्व को निहारती रहती और फिर झेप कर नरेन ही बातचीत का विषय बदल देता। अरे आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, जिस तरह आप हम सब में आत्मविश्वास जगाती हैं। हम सब से मतलब? वसुधा ने बात को बीच में काटा। आपको क्या मालूम मेरा बाकी मरीजों के साथ व्यवहार कैसा रहता है? नरेन सकपकाया। जी, सभी आपके बारे में यही बताते हैं। इस प्रकार 1 घंटे का सेशन होने से पहले ही सुषमा खाने की ट्रे ले आती थी और इसी को एक संकेत जानकर नरेन उठ के चला आता और फिर वसुधा तन्हाई में घंटों उसके बारे में सोचती रहती। नरेन ने भी अपने जीवन का उतार चढ़ाव कई बार जिक्र किया था। वो दादी की छाया में पला बड़ा था और अनाथ था, और वो उस वक्त बिल्कुल टूट गया जब उसकी एकमात्र महिला सहकर्मी मित्र की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई। हताश होकर नरेन ने आत्महत्या की कोशिश की थी। बस इसी वक्त डॉक्टर गुप्ता मिले थे और उनकी बातें सुनकर उनसे वसुधा से मिलाया था। वसुधा से बात करके एक नए जोश, नई उमंग का संचार हो जाता था। वो उसकी हर तरह से मदद करना चाहती थी। नरेन, जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आत्महत्या तो कायरों की निशानी होती है। एक हादसा तुम्हारे सपनों को लगाम नहीं लगा सकता। ऐसे बातचीत में वसुधा अक्सर रोमांचित हो जाती। कब उसका उत्साह प्रेम के झूले में चढ़कर बोलने लगा, उसे पता ही नहीं चला। पर धीरे धीरे नरेन को यह एहसास होने लगा, और जब हालात बेकाबू होते दिखे तो एक दिन नरेन डॉक्टर गुप्ता के कमरे में जा पहुंचा। सर, मुझे नहीं लगता अब मुझे और व्यक्तिगत सेशन करने चाहिए। क्यों? क्या काफी सुधार आया है? ये तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर गुप्ता ने अपने चश्मे से ऊपर झांकते हुए नरेन की तरफ पूछा। जी, मुझे लगता है अब काफी फर्क है, और अगर मैं जारी रखूंगा तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे फर्क आ सकता है। नरेन ने अपना वक्तव्य सामने रखा। हाँ, मैं समझता हूँ, हम उम्र होने के कारण रोजाना मुलाकात से आकर्षण होना स्वाभाविक है। डॉक्टर गुप्ता अच्छी तरह समझ चुके थे और कुछ जानकारी उन्हें सुषमा से भी मिल चुकी थी। तो नरेन, तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी मंगनी अब कोमल से हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अब सेशन जारी करना उचित नहीं होगा। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 स्टोरी पे जा रहे हैं। अब वसुधा नरेन से डायलॉग कर रही है। नहीं नरेन, जिंदगी का अहम फैसला रिश्तेदारों के दबाव में आकर जल्दबाजी में मत उठाओ। आप अपने बंधन में ऐसा जीवन साथी चुनो जो तुम्हें दिल से चाहता हो। इस प्रकार वसुधा समझा रही थी। उसके लग रहा था जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती जा रही है, क्योंकि जब कोमल का जिक्र नरेन ने कहा तो वसुधा अपना आपा खो बैठी। अब सुषमा ट्रे लेकर अंदर आई तो नरेन उठा और बिना नजरें मिलाए सीधा गुड बाय कहकर कमरे से चला आया। ये वसुधा से उसकी आखिरी मुलाकात थी। वसुधा अक्सर बेचैन रहने लगी। क्या नरेन के दिल में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है, या वो सिर्फ संकोच कर रहा है? वसुधा का अक्सर ज्यादातर वक्त खाली रहने लगा। अब उससे इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा था। वो किसी भी कीमत पर नरेन से मुलाकात करना चाहती थी। 4 एकड़ में फैला यह हॉस्पिटल, इससे निकलने में बहुत सख्ताई थी। केवल गेट या आईडी कार्ड से ही बाहर जा सकते थे। ऐसे में वसुधा किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहती थी, पर वह जानती थी कि संकरी गली से झाड़ियों का रास्ता पिछले गेट की ओर जाता है। तो रात में सबकी नजरों से बचकर नरेन के घर पहुंचना उसको ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। काफी देर नरेन के घर के बाहर खड़े रहने से उसने कप कपाते हाथों से घंटी बजाई तो एक खूबसूरत युवती ने दरवाजा खोला। मैं वसुधा, हॉस्पिटल से। मैं नरेन से। आप कौन हैं? जी, आइए, मैं नरेन की पत्नी कोमल। बस इतना कहना था कि वसुधा की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शब्द सूख गए, गला रुंध गया और गश खाकर वहीं गिर पड़ी। कोमल की डरी हुई चीख सुनकर नरेन दौड़ता हुआ दरवाजे पर चला आया। ओ, वसुधा यहाँ पर? उसने झटपट नब्ज जांच की और हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। कौन है ये वसुधा? कोमल ने वसुधा के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए पूछा। नरेन कहता है, हमारे हॉस्पिटल की एक मरीज है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर में खुद को मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मानती है। 3 साल पहले इसके परिवारजनों की
अकस्मात दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से इस हालत को अस्वीकार की अवस्था में ही रहती है। जब हमारी सभी कोशिशें व्यर्थ हो गईं, तो डॉक्टर गुप्ता और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि हम इसका आत्मविश्वास जगा सके। हम उसी की दुनिया में जिए। कुछ महीने तक गुमसुम रहती थी वसुधा, और आज देखो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हॉस्पिटल से यहां तक आ पहुंची है। डॉक्टर नरेन ने कोमल को बताया। एम्बुलेंस आ चुकी थी। वसुधा को स्ट्रेचर पर लिटाया गया तो उसे होश आ गया। उसने कोमल और नरेन की ओर देखा। सायरन और चमचमाती लाइटों में एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ी, और पहियों से उठता धूल का बवंडर वसुधा की मनोदशा बयान कर रहा था। Okay, so it's about mental disorders and the theme that lady was mentally disturbed and identity crisis की भी theme है disorder आइडेंटिटी and क्राइसिस yeah. की थी, तो वसुधा वाज थिंकिंग कि वही ये मेरे एक टीचर ने मुझे बताया कि शॉर्ट स्टोरी में देयर शुड बी अ स्टिंग इन द टेल। सो यहाँ पर टेल TAIL भी है और TALE भी है। So there should be a sting Okay. in the tail. At the last point, there should be a sting. There should be a twist. And in the tail also, in the story also. So यहाँ पर क्या होता है कि वसुधा अब पूरे उसमें एक डॉक्टर की तरह बिहेव कर रही है। रीडर को लग रहा है, हाँ, राइटर को I got that. हाँ, लेकिन लास्ट पैराग्राफ हाँ, में पता चलता है कि वसुधा इज अ पेशेंट while Naren is a patient. doctor हाँ, who was just getting treated by her just to improve her morale, while Vasudha was हाँ, improving I his got morale. that. So she got cured by treating Naren, and Naren was acting as a doctor. So ये एक वो था। Yeah, and I got that. yes, कई बार नरेशन में हाँ, I वो, was talking. और हमने टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा, बट पढ़ने में थोड़ा सा अलग इंटरेस्ट आता है, तो नरेशन में हाँ कई जी, बार नहीं वो but I understood the layers, I understood the themes. वो हाँ, I got that disorder वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, beautiful sir, beautiful write up, heart gut wrenching I must say. हाँ, last में twist था। Yes, I got it. yes, Yes yes. sir. And now the poetry piece. Yes sir. अच्छा, तो आज हमारे थोड़े इंग्लिश के व्यूअर्स को थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि बाई चांस मैं आर्टिकल भी हिंदी का, स्टोरी भी हिंदी का लाया हूँ और पोएम भी हिंदी की लाया हूँ। बट It's चलिए, okay, language is no bar, it's okay. चलो, गुड गुड गुड। तो ये जो पोएम है ना, ये मॉडर्नाइजेशन पे है कि हम किस तरह मॉडर्न होते जा रहे हैं, बट अवर वी स्टिल यर्न फॉर दोज रूट्स। कहते हैं ना, अरे गांव में जाते तो इतना मजा आता, वो पुराना टाइम बड़ा मजा था, अरे ये था। तो कैसे नई पीढ़ी जो है, न्यू जनरेशन जो है, दूर जाती जा रही है। तो पोएम का टाइटल है दूर बहुत दूर। Okay, दूर सोने बहुत की, दूर। Okay. यस, सोने की बालियां पहन, गोल्ड की बालियां पहनकर, जब हुई धूप जवान, जो सनलाइट है वो सोना, गोल्डन गोल्डन कलर उसने लिया है। हुई जब धूप जवान, इमारतों की चोटियों ने ढका आसमान, काली चादर ओढ़ फिर तैयार हुए बादल। इंडस्ट्रीज की वजह से सिटीज में पॉल्यूशन होता जा रहा है। शर्मा कर धूप ने लगा लिया काजल। तो यू कांट सी सनलाइट एज ब्राइट एज, बिकॉज वो सारा है ना। गांव की पगडंडी पर ही छूट गई अंगीठी की महक, कच्ची मिट्टी की खुशबू। शहर में सड़कों में घुट गई चहक चिड़ियों की और कबूतरों की गुटरगू। आज अपनी ही जड़ों में पहुंचने के लिए दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। मतलब चाहे आपका गांव बिल्कुल पास हो, 10 किलोमीटर भी हो, बट यू डोंट गेट द टाइम टू विजिट योर रूरल हाउस, एंसेस्ट्रल हाउस। तो आज अपनी ही जड़ों में पहुंचने के लिए दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तो ये तो सिटी का पिक्चर है। अब पेरेंट्स के साथ पिक्चर है, कैसे चेंज हो जाता है जब हम दिल्ली मेट्रो सिटी में, बेंगलोर या और जगह हम मेट्रो सिटी में, मुंबई, कोलकाता में आकर या बाकी सिटीज में आ जाते हैं। वो पाए लागू से गुड मॉर्निंग माँ का सफर, क्योंकि जब हम गांव में होते हैं तो पाए लागू कहते रहते हैं। वो पाए लागू से गुड मॉर्निंग माँ का सफर, कच्चे घरों से पेंट हाउस फ्लैट ले आया मगर, खो गई खेतों में वो सर्दियों की कच्ची धूप, रखा करता था जब माँ के आंचल में सर। खाना खा लिया बेटा, आवाज अब दूर हो गई है। माँ पूछती रहती है ना गांव में,
खाना खा लिया बेटा, आवाज अब दूर हो गई है, हर वक्त ऑनलाइन हूं, वो भी मजबूर हो गई है। और पिताजी के साथ, अरे सुन, वो पिताजी की रोबीली आवाज जो पड़ती थी कानों में हरदम, गांव से शहर पहुंचकर पड़ गई फीकी, धीमी और मध्यम। जब गांव में थे तो उनकी आवाज बड़ी रोबीली और बड़ी पास में, बड़ा पास से डरावनी लगती थी, लेकिन अब शहर में आ गए तो इट हैज ऑल गॉट फेडेड। इस शोर सन्नाटा से सुनने उस मौन की गूंज, दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ शोर है लेकिन सन्नाटा है, इतना शोर, इस शोर सन्नाटा से सुनने उस मौन की गूंज, वहां शांति है, मौन है, लेकिन वहां गूंज है, दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। ये पेरेंट्स के साथ था। और अब वाइफ के साथ भी, आप जब इधर आ गए हो, सिटीज में बस गए हो, तो वाइफ के साथ क्या है, उसकी शादी की चूड़ियों की खनखनाहट, उसकी शादी की चूड़ियों की खनखनाहट अब कुछ धीमी हो गई है। कुछ छिटक गई चूल्हे चौके में, बिखर गई कुछ बच्चों के पोतड़े में, सोने का ब्रेसलेट पहनकर अपना काम चला लेती है। पहले तो शादी की चूड़ियां पहनती रहती थी गांव में, जब थी इतना बड़ा बड़ा यहाँ तक की चूड़ियां, अब सोने का ब्रेसलेट पहनकर अपना काम चला लेती है। करे ना कोई रीति रिवाज की बात, जो गांव में होती है, करे ना कोई रीति रिवाज की बात, इतना वो कमा लेती है। तो वो दूसरों तो अब एक पतला सा ब्रेसलेट पहना है, लेकिन अब कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ शी इज अर्निंग, भाई शी इज वेल अर्निंग। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, रहकर एक छत के अंदर, अब हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हाथ बटाने, हाथ थामने उसका, दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो गांव का इतना बड़ा घर था, वहां फिर भी हम क्लोज थे, यहाँ एक घर में है, लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे भी जाना, हाथ बटाने, हाथ थामने उसका, दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तो शहरों की ये स्थिति हो गई है। और फिर बच्चों के साथ, पहले पेरेंट्स के साथ था, वाइफ के साथ, अब बच्चों के साथ। नई पीढ़ी की रेस तो और भी सुपर फास्ट हो गई है। गांव से शहर, शहर से मेट्रो, बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। हमारा क्लासिकल से डिस्को का सफर था, उनका डिस्को से वेस्टर्न रैप हो गया है। पापा की पीठ पर जो चलाते थे घोड़ा, जो पापा की पीठ पर चलाते थे घोड़ा, अब विदेशों की फ्लाइट्स पकड़ने लगे हैं, और सपनों की ऊंची उड़ान को उनकी हकीकत में बदलने फिर भी दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तो उन बच्चों को जिनको आपने पाल पोस के बड़ा किया था, वो भी, आप लोग न्यूअर सिटीज में आए हो तो वो और भी ज्यादा दूर चले गए हैं, वो अब्रॉड चले गए हैं, तो विदेशी फ्लाइट्स पकड़ के अब उनके मिलने के लिए भी आपको दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है। सो दैट वाज ऑन द मॉडर्नाइजेशन एंड द कंसेप्ट के हम अपने रूट से कितना दूर जाते जा रहे हैं। Wow, sir. Wow, beautiful, sir. Both the write-ups were lovely. I'm Yes, sure thank all you. our viewers are in awe of your rendition. And I Yeah. like the title, it's like Dur Bahut Dur. It's in जो चार उसके पार्ट, तीन चार पार्ट से, they are all in different contexts. पहले Yes, yes, विलेज से दूर, फिर पेरेंट्स से दूर, वाइफ से दूर, and I got that. yes. So you've used that in different contexts. I love that. It reminded me of, in fact, that novel Far from the Madding Crowd by Thomas Hardy, if you've read. Yeah, yeah. वो भी इसी Yes, थीम yes, पे बेस्ड है। yes, yes. हाँ जी सर, अब एक और फरमाइश आई है अच्छा। मेरे फादर की। ओके, Yes, ही right. सर प्लीज सेइंग, माय फादर इज सेइंग प्लीज सिंग अ सॉन्ग एज यू आर अ फैन ऑफ किशोर कुमार। Oh. सर मुझे पता है आप यू सिंग, बिकॉज आई ऑल्सो स्टॉक्ड यू ऑन इंस्टा, आई नो यू सिंग। हाँ, वो मैंने बताया तो ना हम कि आपको हॉबीज, ऐसे नहीं, मैं सभी हाँ हॉबीज तो हम एम्ब्रेस आपको, करता हूँ। मैंने आपको बताया कि हमें सभी हॉबीज, मेरे को लगता है सभी को सब हॉबीज एम्ब्रेस करनी चाहिए। तो यस यस, दैट्स अ गुड सिंगिंग भी, मैसेज। मैंने आपको बताया, मैं मतलब कॉलेज टाइम में कभी सिंग नहीं किया, अब तो मैं जाके गाता हूँ तो मेरे कॉलेज वो फ्रेंड्स भी कहते हैं कि पहले तो आप गाते नहीं थे, बट अभी मैं गाता हूँ, स्टेज पे भी गाता हूँ, शोज में भी गाता हूँ, तो धीरे धीरे हाँ गाता हूँ। तो हमारे लिए भी कुछ सर प्लीज अ फ्यू लाइंस ऑफ किशोर कुमार पापा इज सेइंग, किशोर अच्छा, कुमार किशोर का कुमार जी कोई का ही सॉन्ग, गाना। अच्छा, तो इफ यू कैन रिकॉल। अच्छा, तो किशोर कुमार जी को तो मैं वैसे कम गाता हूँ। मैं वैसे एसपी ओके, बालासुब्रमण्यम, योर कंफर्ट।
Okay, okay, अच्छा, your comfort, your तो मैं comfort. आपको एसपी बालासुब्रमण्यम का इफ यू आर ओके तो मैं उनका आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं वो ज़्यादा गाता हूँ, तो मेरे को याद भी है थोड़ा वो Yes, ना। yes. Yes, sir, your comfort. Stage is all yours. ओके। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। तो आई थिंक अभी व्यूअर्स के लिए इतना ही काफी है, बिकॉज आई Okay. एम नॉट वेरी वेल Yes, प्रिपेयर्ड। yes. या थैंक यू। No, it's okay. हाँ हाँ। Okay. Okay. So, yes, sir, it was very, very melodious, and I'm sure all our viewers are in awe of your poetry and singing skills as well. थैंक यू, थैंक Yes, यू। या sir. I'm really honored to be with Yes. you on this show, and you are doing so good work. I मतलब learned these things के आप इतने अच्छे पोइटस हो, राइटर हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, यू क्रिएट सो मेनी थिंग्स। तो आपके अंदर तो क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है, Thank you, मतलब sir. Thank वेरी you. इंस्पायरिंग, इट्स Thank वेरी you. इंस्पायरिंग। ओके, थैंक यू सर। सर आप हमारे गेस्ट हो, मेरी तारीफ मत करो अभी। आई एम सपोज टू प्रेज यू। ओके, इट्स नहीं ओके, नहीं आई वाज ऐसा। जस्ट जोकिंग। Okay. Yeah. Okay. So, on that lovely melodious note, my friends, we come to the end of today's session. I want to thank Aditya Ratan sir for giving us his precious time today and for agreeing to do this interview with us tonight. Thanks, sir. Thanks a ton for the same. Sir, it was a lovely literary session, melodious also, and we got an insight into so many domains of your life. You know, your medical journey, literary journey, upcoming projects. गवा भी लिया हमने आपसे. My So, pleasure. It was all my yes, sir. pleasure. And thank you so much for bringing me on this show. और you're doing such a great work. I'm saying it again and again कि आप पूरा शो को होस्ट करते हो. You find talent, you talk to them, you bring them on stage, you provide them the platform. तो this is a very good work you are doing, and I sure कि आप ये पूरा चैप्टर संभाल रहे हो एशियन लिटरेरी सोसाइटी का चंडीगढ़ चैप्टर. So you are doing a lot of good work with a great responsibility. Thank you so much. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thanks a lot. And also a big thank you to all our viewers for joining us live and Yes. commenting so actively throughout the session. We have so Yes. many people who've commented. Manoj sir joined in, Suman Gulati ma'am, Sonam Gaba ma'am, Ravi Kumar sir, Arushi Priya ma'am, Narinderjeet Kaur ma'am. Who else? Suman Gulati ma'am, Siddharth Vivek Sethi sir, and Preeti Charaya ma'am, Arushi Priya ma'am. Oh my God, so many people joined in and commented so actively throughout the session. And Vandana Bhardwaj ma'am also, Arushi Priya ma'am again. Okay. So, yes. So, a big thank you to all of you for joining us live and commenting so actively throughout the session. Your comments were encouraging indeed. This is Steffi Bateja, your host, signing off for tonight. Stay blessed, stay happy, take care, bye, and good night. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for joining. Thank you.